Welcome back, students. Good morning. This is Phoenix Foundation online classes, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स 2। आज के लेक्चर में अपन कवर करने वाला है चैप्टर सर्कल 3.2 प्रॉब्लम सेट एंड रिलेटेड सम थ्योरम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टचिंग सर्कल्स। लेट्स कम टू नो सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टचिंग सर्कल। ओके, look, here is two diagram of touching circle and this is the definition of two touching circle. Okay, look, if two circles in a same plane, look at this, it has two circles. Okay, in the first diagram, circle R and S and circle M and N. In the second diagram, okay, these are also two circles, two touching circles M and N. Okay, look at the definition. If two circles in a same plane, ये दोनों भी circles एक ही plane में है, okay, intersect with a line in a plane in only one point. Okay, look at this, these two circles are said to be, okay, touching circle. These two circles also touching circles. Okay, look, said to be touching circles. Okay, so this is called externally touching circles because point circle R and circle S are externally touching circles. Line L is their common tangent and T is known as their point of contact. Okay, similarly in circle M and N are internally touching circle. Okay, L is their common tangent, okay, and K is their point of contact. Okay, तो बेसिकली टचिंग सर्कल्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, एक होता है इंटरनली टचिंग सर्कल। ओके ओके, बोथ सर्कल हैज अ कॉमन टेंजेंट, ओके, and a point of contact. Okay, look at this externally touching circles. R, S, T is their point of contact and L is the common tangent. Okay, similarly in circle M and N, K is the point of contact and P is the common tangent of circle M and N. चलिए आगे चलते हैं। Okay, look, theorem of टचिंग सर्कल्स। ओके, टचिंग सर्कल्स के कुछ थियरम्स अपन स्टडी करने वाले हैं जिसका यूज अपन प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने के लिए यूज करने वाला है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टू टचिंग सर्कल्स। ओके, हियर इज फर्स्ट diagram, there is a second diagram. Okay, this is externally touching circle A and B. L is their common tangent and C is the point of contact. Okay, second diagram, these are the internally touching circle A and B, their centers. L is the common tangent and C is the point of contact. Okay, देखते हैं थ्योरम कौन सा है। ओके, थ्योरम 3.3, थ्योरम 3.3। ओके, if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers. Okay, in the previous lecture we had learned theorem 3.1 and 3.2. Now this is the 3.3 theorem. Okay, look, if two circles touches each other, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, एक है इंटरनली टचिंग सर्कल। If two circles touch each other, their point of contact lies on joining their centers. Okay, look at this. What is the point of contact of two touching circle A and B? Okay, here is C is the point of contact of two touching circles. Okay, in the second diagram, A and B are two internally touching circles and C is their point of contact. Okay, तो थ्योरम क्या बोलता है? The line joining their centers, तो सेंटर A सेंटर बी, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ए बी। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है,
दिस इज लाइज ऑन द लाइन ए बी, यानी कि वो लाइन ए बी के ऊपर आता है, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली अगर आप इसके अगर सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, तो देखते हैं अपन इसके एक बार सेंटर्स ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये ए बी और ये सी, इसके अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूँ तो सेंटर्स कौन सा है, ए एंड बी। ओके, तो ए बी अगर मैं सेंटर्स ज्वाइन करता हूँ, ओके देखिए यहाँ पे ए बी सेंटर्स ज्वाइन किया, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, तो ये पॉइंट सी कहाँ पे आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, है ना। ओके, चलिए देखते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम ये टू डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो ये फर्स्ट डायग्राम अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको अपन प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस के साथ प्रूव करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, ओके। एंड स्टार्ट करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। ओके, गिवन, ओके क्या रिक्वायरमेंट है हमें, हमें टू सर्कल चाहिए। ओके, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल ऑफ of the of the two circles with center A and B. Look at this, इस डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए, इसको ही प्रूव करने वाले अपन। ओके, टू टचिंग सर्कल्स A and B are two touching circles. C is the point of contact. C is the point of contact. Okay, okay. चलिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, पॉइंट C lies on the line AB. Look at this. Point C lies on the line AB. यानी कि ये C पॉइंट AB के ऊपर है, इधर उधर नहीं है, AB के ऊपर है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए A C B आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो ये कोलिनियर क्या होता है, ओके चलिए देखते हैं। ओके, कोलिनियर मीन्स सपोज, ओके जस्ट ए मिनट, ओके सपोज एक पॉइंट है, इसको अपन ए कंसिडर करते हैं, ये सेकेंड पॉइंट है, इसको बी कंसिडर करते हैं, ये थर्ड पॉइंट इसको सी कंसिडर करते हैं। इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस थ्री पॉइंट्स, तीनों भी पॉइंट्स में से कोई भी एक लाइन पासिंग होती है, तो दिस थ्री पॉइंट्स नोन एज कोलिनियर पॉइंट, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर वो आते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स अपन इसको बोल सकते हैं, ओके अ लाइन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स एट ए टाइम, एक ही टाइम में थ्री पॉइंट्स में से जा रही है, तो ये थ्री पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो इस थ्योरम में भी अपन यही प्रूव करने वाले हैं एक्चुअली कि ये ए सी बी आर कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मतलब है सी ए और बी इस लाइन के ऊपर ही है। ओके, इसको हमें प्रूव करना है, चलिए अभी करते हैं प्रूफ। प्रूफ, ओके, तो लेट्स लाइन यल be a common tangent passing through C of two टचिंग सर्कल्स। देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक्चुअली कंस्ट्रक्शन है ना, क्योंकि गिवन में अपन ने सिर्फ टू सर्कल्स ड्रॉ किए, जो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, ठीक है। ए एंड बी आर टू टचिंग सर्कल्स, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, तो यहाँ पे अपन ने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की है जो सी से पास हो रही है, ये सी लाइन सी है, कॉमन टेंजेंट पास हो रही है, इसका नाम क्या है, यल। ओके, तो ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, इसी का यूज करके हम इसको प्रूव करने वाले कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या तो सी द पॉइंट ए बी के ऊपर है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको ओरली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हमें इसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट भी करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन आपको आता है, आंसर आपको आता है, इसका मतलब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, उसको आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, चलो इसको मैं एक बार आपको ओरली समझाता हूँ, इसको कैसे प्रूव करने वाले, हाउ टू वे, इसका रास्ता क्या है, एक वे बताता हूँ मैं, फिर उसके वे के ऊपर अपन चलेंगे। ओके, तो डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, देखिए ये टेंजेंट है, अभी सर्कल ए के बारे में सोचिए, ये टेंजेंट है यल, ओके, और ये सर्कल है ए, तो ए सी इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल एंड यल इज द टेंजेंट। और हमने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा है, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। एंड सिमिलरली
in circle B, BC is the radius, L is the tangent. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, तो चलिए यही भी प्रूफ हो गया। अगर परपेंडिकुलर लाइन, ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 प्लस 90 क्या होता है? 180। ओके, तो देखिए, तो ये 180 का जो एंगल होता है, एक्चुअली 180 का एंगल होता है, देखिए जस्ट मिनट। ओके, देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन, अगर मैंने एक, जस्ट मिनट, अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया है, इसका नाम है ए, ओके, बी सी। आप बोलेंगे ये एंगल है क्या? यस, ये एंगल है, ये इसका वर्टेक्स है। ओके, तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या है? 180 डिग्री। ओके, है ना? अगर ये 180 है, इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना? अगर कोई भी लाइन एक स्ट्रेट है, इसका मतलब है उसके ऊपर के जो पॉइंट है वो कोलिनियर है ना? ओके, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट, ओके, कि ये इस ए पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना? तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, इसलिए तो ये 180 बनता है। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट ए जो है, इसके ऊपर हम कितने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वन एंड ओनली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो परपेंडिकुलर है, और वो यल है। ठीक है, तो यल इज द परपेंडिकुलर टू बी सी। ऐसा प्रूव करके हम बोल सकते हैं कि ए इज ऑन द लाइन बी सी। ओके, चलिए अपने थ्योरम के ऊपर चलते हैं। ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। तो मैंने बता दिया आपको कि हम कैसे प्रूव करने वाले, कैसे ये पॉइंट सी ए बी के ऊपर आने वाला है। चलिए चलते क्वेश्चन के ऊपर। ओके, लाइन यल परपेंडिकुलर टू सेक AC। लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू सेक AC। इसका रीजन क्या बोलेंगे अपन? टैंजेंट थ्योरम। वेरी गुड। ओके, लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, कौन से सर्कल में? सर्कल बी में लाइन यल ये BC को परपेंडिकुलर है। ओके, इन दोनों का रीजन आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? टैंजेंट थ्योरम। ओके, चलिए। therefore sec AC is perpendicular line L। sec AC ये रेडियस है, परपेंडिकुलर टू लाइन L, यहाँ पे हमने 90 का साइन किया है। सिमिलरली इन सर्कल B, sec BC परपेंडिकुलर टू लाइन L। देखिए यहाँ पे ये B सर्कल में BC रेडियस है और ये L के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, थ्रू पॉइंट C वन एंड ओनली लाइन, ओके, ये देखो, थ्रू पॉइंट सी वन एंड ओनली लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन यल कैन बी ड्रॉन। ओके, इसका ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे मैंने बताया है, इसका मीनिंग क्या है कि पॉइंट सी से वन एंड ओनली लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं जो परपेंडिकुलर है। ओके, इसका मतलब है कि ये एक फ्लैट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। यही पे आपका थ्योरम प्रूफ होता है। ओके, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड, ओके, तो ये जो कोलिनियर पॉइंट है इसका लिखने का तरीका क्या है? तो ये जो तीनों भी पॉइंट्स है, ए डैश बी डैश सी, इस तरीके से उसको लिखा जाता है पॉइंट को। ओके, और ये जो सीक्वेंस अपन ने लिखा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, एक्चुअली ये जो सी पॉइंट है ये बीच में लिखना चाहिए आपको। ओके, ए सी बी, इस तरीके से इसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका थ्योरम प्रूफ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, रिमेंबर दैट, कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, रिमेंबर यानी कि उसको आपको याद रखना है, जिसका यूज़ अपन एग्जाम्पल्स जब सॉल्व करेंगे तब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स lies on the line joining their centers. Okay, look at this. Two externally touching circle A and B, point C lies, ये जो पॉइंट सी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, लाइज ऑन लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ओके, ये जो लाइन जॉइनिंग होती है सेंटर्स को, इसके ऊपर ये पॉइंट होता है। ये आपकी फर्स्ट रिमेंबर थिंग है। ओके, देखिए
ये होगा एक्सटर्नली टचिंग, सॉरी ये होगा इंटरनली टचिंग सर्कल। ओके, इसके अगर मैं सेंटर्स ज्वाइन करता हूँ तो पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू देयर सेंटर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, इफ टू सर्कल्स आर टच ईच अदर एक्सटर्नली, ओके, इट मीन दैट इस डायग्राम में अपन बात कर रहे हैं टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली ईच अदर, सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो इसके बारे में क्या याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। इसका मतलब क्या है, ओके, कि ये जो टू टचिंग सर्कल है एक्सटर्नली, इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या है। ओके, इसका मतलब डिस्टेंस ए बी कितना होता है, डिस्टेंस ए बी कितना होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो डिस्टेंस ए बी कितना होता है। तो डिस्टेंस ए बी होता है, ओके, ये जो फर्स्ट सर्कल है इसकी ये जो रेडियस है इसको अपन R1 कंसिडर करेंगे, इसकी रेडियस है इसको R2 कंसिडर करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ओके, तो द सम ऑफ देयर रेडियाई, तो यहाँ पे अपन करेंगे R1 प्लस R2, ये दोनों की जो सम है वही डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ओके, चलिए ये याद याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए। ओके, चलिए, इफ टू सर्कल्स आर टच ईच अदर इंटरनली, तो ये जो इंटरनली टचिंग सर्कल है, ओके, इन दोनों की जो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ओके, ये जो फर्स्ट एक्सटर्नली टचिंग सर्कल थे इसमें हमने उसके इसमें हमने उसके सेंटर्स कैसे फाइंड आउट किए, तो उनके रेडियस की सम की। अगर इंटरनली टचिंग सर्कल है, अगर इंटरनली टचिंग सर्कल है तो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ओके, तो सपोज ये जो ए सी है ये रेडियस है सर्कल ए की, उसको अपन R1 कंसिडर करेंगे। ओके, और ये जो बी सी है इसको R2 कंसिडर करेंगे, बी सी इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो देखिए यहाँ पे, ओके, डिस्टेंस R1 माइनस R2। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन two internally touching circles is equal to the, okay, difference between their radii। okay, इन दोनों की रेडियस की डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो हमें ये सेंटर्स का, ओके, डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। ओके, तो हमें तीन चीजें याद रखनी है। टू टू टचिंग सर्कल्स कैसे होते हैं, एक होता है इंटरनली टचिंग सर्कल, दूसरे होता है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। ओके, सॉरी। ओके, तो देखिए फर्स्ट थिंग क्या है, ओके, फर्स्ट थिंग है टू सर्कल्स है, एक होता है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, एक होता है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, दूसरे होते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ओके, ये दो जो सर्कल्स है, ओके, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओके, ये लाइन की ज्वाइनिंग्स के अगर ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो उसके ऊपर आता है, ठीक है।
ओके। और इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, टू सेंटर्स इंटरनल टचिंग सर्कल का डिफरेंस बिटवीन देयर रेडिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, I will read the question. Two circles, the distance between their centers having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other externally. Find the distance from their centers. Okay, तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे टू इंटरनली टचिंग सर्कल है। ओके, तो टू इंटरनली टचिंग सर्कल, एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा तो क्वेश्चन क्या है। टू इंटरनली टू इंटरनली टचिंग सर्कल है, टू इंटरनली टचिंग सर्कल है। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द ये बिगर सर्कल। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल और सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो हमें ये ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनली टचिंग सर्कल का सिंपल फार्मूला है, ओके, R1 यानी कि जो भी आपका बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस माइनस R2, ओके, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है। ओके, इसके अगर डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे इसका डिस्टेंस। ओके, इंटरनली टचिंग सर्कल है तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो उसकी हमें क्या करनी है, सम फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है तो हमें सारा जो क्वेश्चन है वो लेट में कंसीडर करना है। लेट रेडियस ऑफ द टचिंग सर्कल्स, ओके, बी R1 एंड R2। ये जो टू टचिंग सर्कल है ये कैसे इंटरनली टचिंग सर्कल है, इन दोनों की जो रेडियस है, एक को हमने R1 कंसिडर किया है, दूसरे को R2 कंसिडर किया है। ठीक है, तो देखते हैं अपन R1 क्या लेते हैं। R1 is 3.5 सेंटीमीटर एंड R2 is 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, एक रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, दूसरी 4.8 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक रेडियस जो R1 है मैंने उसको 3.5 सेंटीमीटर कंसिडर किया है, R2 को 4.8 सेंटीमीटर कंसिडर किया है। अब ये जो टू सर्कल्स है उन दो सर्कल के सेंटर्स का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस देखते हैं यहाँ पे। सिंस two circles are touching each other internally touching circle है। okay, by the theorem of touching circles, the centers and their point of contact, ये थ्योरम हमने अभी स्टडी किया है। थ्योरम क्या है, टू टचिंग सर्कल्स सेंटर्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एक रिलेशन है। ओके, इंटरनली टचिंग सर्कल है स्टूडेंट्स, इंटरनली टचिंग सर्कल है तो दो रेडियस की हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो टू सर्कल्स की टू रेडियस की हमें एडिशन करनी है, सम करनी है। ओके, इफ टू सर्कल्स आर टच each other internally, okay, distance between their centers is equal to the difference of their radii। okay, तो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी, ये आपका थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के साथ अपन उसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू R2 माइनस R1, जो भी बड़ी रेडियस है उसमें से छोटी रेडियस माइनस करेंगे। ओके, तो R2 क्या है 4.8, R1 क्या है 3.5। ओके, इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। 4.8 एंड 3.5। देखिए स्टूडेंट, ओके, 4.8 एंड 3.5 इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। ओके, ये हो गया 8 माइनस 5 3, ओके, पॉइंट, ओके, और यहाँ पे आ गया 1। ओके, तो 1.3। ओके, चलिए, तो आपका आंसर आ गया 1.3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये इसका लास्ट स्टेटमेंट लिख देते, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, two circles of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touch each other externally. Find the distance between their centers. Okay, two externally touching circle है, उसका distance निकालना है. Okay, if you remember that, okay, distance between two externally touching circles is equal to the sum of their radii. Okay, चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. Okay, let radii of two टचिंग सर्कल्स बी R1 एंड R2. ओके, तो हमें रेडियस चाहिए फार्मूले में, तो R1 और R2 हम उसको कंसिडर करते हैं. ओके, देयरफॉर R1 इज 5.5 सेंटीमीटर, R2 इज 4.2 सेंटीमीटर. दैट इज योर गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, सिंस the two circles are touching each other externally, okay, by the theorem of touching circles and the centers and their point of contact. Okay, if two circles are touching each other externally, distance between their centers is equal to the sum of their radii. उसकी रेडियाई की सम करनी है. ओके, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, फार्मूला है R1 प्लस R2. ओके, R1 5.5 सेंटीमीटर, R2 4.2 सेंटीमीटर. ओके, 5.5 एंड 4.2 इसकी एडिशन करनी है. 5.5 एंड 4.2. ओके, तो देखिए इसकी सम करनी है. ओके, 5 प्लस 2 7, यहाँ पे पॉइंट देंगे अपन. ओके, 5 प्लस 4 9. ओके, 9.7 इज योर फाइनल आंसर. ओके, 9.7 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसका लास्ट स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. ओके, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 9.7 सेंटीमीटर. ओके, चलिए स्टूडेंट, चलती है अगले क्वेश्चन के ऊपर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक कंस्ट्रक्शन है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं. एक अलग से मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपन उसका जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो देखने वाले हैं. तो उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज योर गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, तो गिवन में क्या है, द सर्कल्स विथ सेंटर्स P and Q touch each other at R. Okay, so here is your diagram. Okay, तो देखिए ये डायग्राम है हमारी. ओके, टू टचिंग सर्कल है, सर्कल P, सर्कल Q. ओके, ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है. ओके, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, R. R is the point of contact of two externally touching circle. This is your given information. A line passing through R meet the circle A, circle at A and B respectively. तो ये क्या बोल रहे हैं, ओके, लाइन A. तो देखिए ये लाइन A जो है, ओके, लाइन A जो है, ओके, ये R से पास हो रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है, और इस सर्कल को ए में इंटरसेक्ट होती है और इस सर्कल को बी में इंटरसेक्ट होती है. ठीक है, तो ये लाइन यल यहाँ पे दी हुई है आपको, सॉरी लाइन ए यहाँ पे दी हुई है, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है. ओके, और टू सर्कल्स को ए एंड बी इस 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, प्रूव दैट. तो हमें क्या प्रूव करना है, देखते हैं. फर्स्ट, sec AP is parallel to the sec BQ. ओके,
हमारी ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये डायग्राम है, हमें क्या प्रूव करना है, ए पी एंड बी क्यू पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हमें इसको प्रूव करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड, ट्राइंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी। ओके, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है ये सिमिलर प्रूव करना है। ओके, लुक, ए पी आर एंड आर क्यू बी, ये टू ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये हो गया आपका सेकेंड प्रूफ। थर्ड, फाइंड एंगल आर क्यू बी इफ पी ए आर 35 डिग्री। देखते हैं पी ए आर कहाँ पे, पी ए आर 35 डिग्री है। ओके, तो मैं आपके यहाँ पे एक बार उसको मेंशन कर देता हूँ। ये जो एंगल है ये गिवन है, ये कितना है, 35 डिग्री। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, देखिए यहाँ पे पी ए आर 35 डिग्री है, तो हमें फाइंड आउट करना है आर क्यू बी। आर क्यू बी, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, इसको भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। इस एंगल को अपन फाइंड आउट करने वाले हैं और ये गिवन है, ये गिवन है। ओके, और इसको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ए पी एंड बी क्यू को पैरेलल प्रूव करना है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे लेक्चर्स है ये ओके 60 मिनट तक चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, हर कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आपके लेक्चर्स ये 15 मिनट 10 मिनट होने चाहिए, लेकिन 10 मिनट में कोई कंसेप्ट अपन कैसे समझ सकते हैं, इसलिए ओके सॉरी टू से, बट मैं 60 मिनट तक आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे, जहाँ जहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट आते हैं उसको भी डिटेल से समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ए पी और बी क्यू को पैरेलल प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्ट अपन ये पैरेलल प्रूव कैसे करते हैं, ये पैरेलल का मीनिंग क्या है। ओके, लुक एट दिस, फॉर एग्जाम्पल्स, ओके जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जाम्पल्स ये लाइन यल है, ओके, और ये लाइन एम है। ये टू लाइंस, जो ये टू जो लाइंस है, इसको पैरेलल प्रूव करने के कुछ क्राइटेरियाज है। ये पैरेलल है, इसके टू क्राइटेरियाज है। ओके, इसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, इसको अपन नाम देंगे ए। ओके, देखिए लाइन यल एंड यम, ये टू लाइंस है, और लाइन यल इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ओके, आपने पढ़ा होगा ए स्टैंडर्ड में, दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल 8 एंगल्स बनाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये जो 8 एंगल है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है इसका। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, फर्स्ट क्राइटेरिया है, अगर देखिए, अगर ये जो एंगल है 3, ये जो एंगल है 6, ये अगर किसी तरीके से अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके, ये एंगल देखिए ऐसे जेड में आते हैं, ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ओके, तो ये टू लाइंस पैरेलल हो जाती है। ओके, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये टू लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल। सिमिलरली देखिए, ये जो उल्टा जेड आपको दिखता है, ओके, तो ये जो एंगल 4 है एंड एंगल 5 है, ओके, ये अगर प्रूफ होते तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये टू लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल। तो इसी क्राइटेरिया का अपन यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे सॉरी तो हमें यहाँ पे देखिए, ओके, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन हमें पैरेलल प्रूव करनी है, तो मैं पहले इसका वे बताने वाला हूँ, किस तरीके से अपन जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ओके, ये लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। ओके, तो ये जो टू लाइंस है, ओके, इस टू लाइंस को ये पी बी आपको एक ट्रांसवर्सल दिखेगा। ओके, ओके, देखिए ये पी बी एक ट्रांसवर्सल है। ओके, और ये टू लाइंस है, अगर ये एंगल्स ए
एंड एंगल बी को अगर अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये टू लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो देखिए ये ऐसा बनता है आपका जेड। ओके, दिखता है आपको? ओके, इस तरीके से ये एक जेड बनता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एंगल ए एंड एंगल बी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अल्टीमेटली ये टू जो लाइंस है ये पैरेलल हो जाते हैं बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, इसके पहले हमें ये बताना है कि ये कोलिनियर है क्योंकि टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है। ओके, तो ये जो अगर सेंटर्स मैंने ज्वाइन किया है तो आर इस पॉइंट के ऊपर है, ये हम पहले प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, बाद में ये लाइंस क्योंकि इसका हमें काम है। ओके, तो ये लाइंस अपन पैरेलल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला कंसेप्ट लेते हैं। ओके, प्रूफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, सिंस circle P and circle Q are touching circles, okay, that is given information। कौन सी टू सर्कल्स है? सर्कल P and Q। okay, by the theorem of touching circle, okay, sorry, by the theorem of टचिंग सर्कल्स। ओके, ये जो टचिंग सर्कल का जो थ्योरम है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स का है, तो ये लाइंस के ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। पी आर क्यू ये कोलिनियर है। ओके, पी आर क्यू। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो पहला जो प्रूफ है इसको स्टार्ट करते हैं। ए पी इज पैरेलल बी क्यू, ए पी इज पैरेलल बी क्यू, इसको हमें प्रूफ करना है पैरेलल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अपन काम कर रहे हैं इन ट्राइंगल पी ए आर, इन ट्राइंगल पी ए आर, ये जो ट्राइंगल है इसके ऊपर अपन काम करने वाले। ओके, ओके, सेक पी ए इज कॉन्ग्रुएंट पी आर। ओके, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, देखिए इस सर्कल में ओके पी ए एंड पी आर, पी ए एंड पी आर, ओके, ये क्या है? टू, ओके, देखिए ये टू रेडियस है। ओके, है ना? तो ये टू रेडियस अगर है तो ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। ओके, ओके, इन ट्राइंगल ए पी आर या तो पी ए आर, पी ए इज कॉन्ग्रुएंट पी आर, पी ए यानी कि ए पी इज कॉन्ग्रुएंट पी आर। ओके, तो ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल इसका रीजन है। तो टू एंगल्स इक्वल हो जाएगी। ओके, क्योंकि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए एंड एंगल आर ये क्या है? दोनों भी कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ओके, बाय द आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ये टू साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये जो बेस एंगल है ये इक्वल होते हैं, तो एंगल ए एंड एंगल आर आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो एंगल ए को मैंने यूजिंग थ्री लेटर्स लिखा है पी ए आर। ओके, देखिए पी ए आर एंड पी आर ए। ओके, पी आर ए, पी ए आर एंड पी आर ए, ये टू एंगल्स क्या है? इक्वल है। इसको मैंने स्टेटमेंट वन कंसिडर किया है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल क्यू आर बी, ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल क्यू आर बी, इस ट्राइंगल में अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में भी क्या है? ये जो टू रेडिया है ये इक्वल है। देखिए यहाँ पे ये रेडियस और ये रेडियस, सॉरी, इसको थोड़ा यूज करते हैं, ये ज़्यादा हो गया। ओके, पेन यूज करना चाहिए हमें। ओके, ये पेन है। ओके, तो ये रेडियस
ओके, रेडियस आर क्यू एंड रेडियस क्यू बी, ये टू रेडियस क्या है, कॉन्ग्रेंट है रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ओके, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ओके, sec QR and sec QB are congruent रेडिया ऑफ सेम सर्कल, यहाँ पे मैंने मार्किंग भी किया है। ओके, तो उसके बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे एंगल, ओके, क्यू आर बी, एंगल क्यू क्यू आर बी, ये एंगल आर है। ओके, क्यू बी आर, ये एंगल बी है। ये टू एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसका रीजन है ओके कि बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, तो देखिए, ओके, यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। नाउ एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी। डायग्राम के ऊपर चलते हैं। एंगल पी आर ए एंड क्यू आर बी, ये जो टू एंगल्स है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ओके, तो थर्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखते हैं यहाँ तक अपन ने क्या क्या प्रूव किया है। ओके, हमने इस सर्कल में एंगल ए एंड एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। इस सर्कल में, इस सर्कल के इस ट्रायंगल में ओके एंगल आर एंड एंगल बी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ओके, चलिए फिर से देखते हैं। एंगल ए एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट है। ओके, एंगल बी एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और ये जो आर है ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो इसको मैं एक थोड़े से अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। ओके, देखिए, ये जो एंगल है इसको मैं अगर ग्रीन कलर देता हूँ, ओके, तो इस एंगल को भी मैं ग्रीन कलर दूंगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो देखिए, अगर मैं इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी कॉन्ग्रुएंट है तो ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन है। ठीक है, और ये जो बेस एंगल है इसके साथ इक्वल है। समझ गए आप, ये जो बेस एंगल है ये इसके साथ इक्वल है, तो इसको भी मैं ग्रीन कलर दूंगा। ठीक है, तो इनफैक्ट आपको समझ में आएगा, तो ये एंगल्स, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये था आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ये था आपका स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, और ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड। ओके, फ्रॉम 1, 2 and 3 we get angle PAR congruent with angle QBR। ओके, इसका मतलब है PAR यानी कि एंगल ए, ओके, QBR यानी कि एंगल बी, ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये अल्टरनेट एंगल भी है। ओके, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ओके, टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन, कौन सी टू लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, सेक AP इज पैरेलल टू सेक BQ। ओके, देखिए यहाँ पे, ओके, ये जो डायग्राम है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ। ओके, ये AP, ओके, ओके, एंड ये BQ। ओके, तो AQ हो गया उसके ट्रांसवर्सल, हमने ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ओके, तो ये जो Z में जो एंगल आते हैं ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये एंगल अगर इक्वल है तो ये जो AP एंड BQ ये लाइंस क्या हो गए, पैरेलल। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ। ओके, चलिए चलते हैं हमारे, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड प्रूफ क्या है। ओके, सेकंड में हमें ये जो टू ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB, हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ये एंगल और ये एंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिमिलर के लिए फर्स्ट का उसका जो कंटेंट है, एलिमेंट है, वो देखते हैं। ओके, PAR इज कॉन्ग्रुएंट,
PAR is congruent QRB, okay, from 1 and 3, okay। तो ये जो टू ट्राइंगल्स है, ओके, ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकेंड, ओके, PAR यानी कि एंगल ए एंड एंगल आर ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ओके। हमें मालूम है कि ये सभी एंगल इक्वल है, तो एंगल ए, ओके, एंड ये जो एंगल आर है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ओके। ओके, एंगल आर एंड एंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो पी ए आर, देखिए पी ए आर, ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके, और ये उसके हमने प्रूव किए अल्टरनेट एंगल। तो इस टू ट्राइंगल्स के ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल APR and triangle RQB are congruent by AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रूफ, ओके। तो सेकंड प्रूफ कैसे किया अपन ने, ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके, एंड ये एंगल्स एंड ये एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी हमने पहले ही प्रूफ किया है, ठीक है। चलिए चलते अपने थर्ड प्रूफ की तरफ। हमारा थर्ड प्रूफ है कि एंगल RQB कितने डिग्री है, ओके। तो RQB कहाँ पे देखते हैं, एंगल RQB, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो हमें एक गिवन दिया हुआ है PAR, ओके, ये दिया हुआ है हमें 35 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है 35 डिग्री, ओके, और हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है, ओके। फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3, फ्रॉम 1 to and 3, ओके। तो एंगल PRA and QRB and QBR 35 डिग्री, ओके। R ये जो एंगल है यहाँ का, ओके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बार डायग्राम में, ओके। ये अगर 35 है, इसका मतलब ए भी 35 है क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ओके, ओके। ये अगर 35 है तो ये भी 35 है, ओके। इसका रीज़न क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, ओके। ये अगर 35 है तो ये भी उसका 35 एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल 35 है, एंगल ए, ये एंगल आर, और ये इस एंगल का, ट्राइंगल का आर, और इस ट्राइंगल का बी। तो ये तीनों भी ट्राइंगल्स क्या है, 35 डिग्री है। तो इसको मैंने यूजिंग थ्री लेटर्स लिखा है, PAR, ओके, ARP, ओके, QBR, ये तीनों भी 35 डिग्री है, ठीक है। 35 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो देखिए इस ट्राइंगल में, ओके, ये 35 है, ये 35 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अपन ये एंगल निकाल सकते हैं, ओके। तो इस ट्राइंगल में हमें ये 35 है, ये हमने 35 प्रूव किया है, ओके, और ये भी 35 है, और हमें ये एंगल निकालना है, ओके। इन ट्राइंगल QRB, QRB, इस ट्राइंगल में चलिए एंगल QRB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल, ओके, यहाँ पे QBR नहीं चाहिए, ओके, एंगल RB, और ये जो एंगल है, देखिए एंगल RB, तो ये Q है, तो देखिए RQB चाहिए यहाँ पे, जस्ट मिनट, RQB, RQB हमें इसको फाइंड आउट करना है, या तो BQR ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। 35 + 35 + RQB, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये RQB।
आर क्यू बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल 35 है, ये 35 है। ठीक है, तो 35 प्लस 35 70, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180। 70 को ट्रांसफर करते हैं। ओके, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70। ओके, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू, ओके, 180 माइनस 70 कितना होता है, 110। तो ये आ गया आपका 110। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 3.28, ये आपका फिगर है। ओके, द सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी टच each other at E. Line L is the common tangent which touches the circles at C and D respectively. Okay, find the length of sec CD. If radii in figure 3.28 of the circle, okay, is 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मैं बताता हूँ कौन कौन से रेडियाई आपको दिए हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये डायग्राम है। ओके, टू सर्कल्स है, सर्कल ए, सर्कल बी, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। ओके, तो ये जो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है, ओके, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ई। ओके, ये दोनों सर्कल की एक यल टेंजेंट है। ओके, और ये इस सर्कल को डी और ए सर्कल को सी में इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें ये टेंजेंट की लेंथ ऑफ सी डी फाइंड आउट करना है। दिस इज योर सॉल्यूशन, यही फाइंड आउट करना है हमें। सी डी का आंसर क्या है, सी डी की लेंथ क्या है। ओके, तो इसको गिवन लिखते हैं पहले। ओके, सर्कल ए एंड सर्कल बी आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट लिखते हैं अपन। ओके, line L is a common tangent. Okay, radius of circle A 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल B 6 सेंटीमीटर। ये जो A सर्कल है इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये छोटा सर्कल है। ओके, रेडियस B इसकी सर्कल B इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ओके, ये थोड़ा बिगर सर्कल है। ठीक है, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ सेक सी डी। ये टेंजेंट जो यल है इसकी सेक सी डी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। ओके, जॉइंट ए सी, ए बी एंड बी डी। हमें ए सी, हमें ए सी, ए ये रेडियस ज्वाइन करना है और इस सर्कल में ओके बी, बी डी एंड बी ये ज्वाइन करना है। ओके, और ऑब्वियसली हमें ये लाइन भी ज्वाइन करनी है। ओके, टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये आ गया आपकी डायग्राम। तो देखते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये होगी रेडियस 4 सेंटीमीटर सर्कल ए की, ये होगी रेडियस सर्कल ए की 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडिया ऑफ सेम सर्कल, दोनों भी सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। तो ये हो गए 2 रेडिया। ओके, इसको हमने ज्वाइन किया है। तो ये भी लाइन हमने ज्वाइन की, ये भी ज्वाइन की, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करने के लिए अपन ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ए से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ओके, ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ओरली ही बताता हूँ कि सी डी का आंसर अपन कैसे निकलने वाले। तो हाउ टू वे देखते। ओके, देखिए, इन सर्कल ए, इन सर्कल ए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये हो गया 90 का एंगल। ओके, इन सर्कल बी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये हो गया 90 डिग्री। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। ओके, और ये यम एंगल 90 है बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो हमारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल दिखता है। ओके, ए सी डी एम, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ओके, इसका एक एंगल 90 है
दूसरा 90 है, तीसरा भी 90 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन सब एंगल्स की सम होती है 360 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 90 270 होता है। ओके, तो 270 360 से माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा 90। ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये बन जाता है रेक्टेंगल। ओके, तो ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये डीएम भी 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, लेकिन ये पूरी लाइन कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, कौन सी लाइन, बी डी, क्योंकि रेडियस है। तो ये 6 सेंटीमीटर से ये 4 अगर आप माइनस करते हैं तो ये रहता है 2। ओके, तो डीएम, जो डीएम आपको दिख रहा है ये 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ए डी एम। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओके, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये उसका हाइपोटेन्यूस है, ये आगे वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूस है ना। तो ये जो बी ए बी है ये कैसे निकालेंगे अपन, 4 प्लस 6 10। हमें एक साइड ये मालूम है और ये साइड 2 हमने फाइंड आउट की है। ओके, तो हम ए एम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें ए एम आ जाएगा। ओके, और ए एम इज द अपोजिट साइड ऑफ द सी डी। तो ए एम और सी डी इक्वल रहेगा, तो ऑब्वियसली ये सी डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ओरल थिंकिंग मैंने बताया। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो सबसे पहले आपको उसका थिंकिंग करना है। ओके, उसके बाद आप उसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हमें अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसका वे, एक मैप आपको आपके मन में ही बनाना है। तो मैंने बताया कि ये किस तरीके से अपन ओरली इसको थिंकिंग करते हैं। ओके, और सेकंड स्टेप है उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी। ये ए एम बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी आपका एक कंस्ट्रक्शन है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। ओके, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे भी पेस्ट किया है। ओके, तो ये पूरे कंसेप्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, इस तरफ देखिए अभी। ओके, सिंस सर्कल ए एंड बी एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ओके, ये जो 2 सर्कल्स है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है। बाय the theorem of touching circles AEB are collinear। AEB ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। इसका यूज कैसा होगा स्टूडेंट्स, आपको हम इसके एडिशन कर सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स इज द सम ऑफ देयर रेडियाई। 4 प्लस 6 10 आ जाएगा। इसका काम हमें आगे चल के आने वाला है। ठीक है, ओके। AE is equal to AC is equal to AE is equal to AC is equal to 4 सेंटीमीटर। ओके, AE AC 4 सेंटीमीटर है। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, BE इज इक्वल टू BD 6 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहाँ पे BE और BD 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी रेडियस है ऑफ द सर्कल B। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपने बताया कि ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 6 है। ओके, इसका एक साथ रीजन लिखते हैं अपन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके ओके, देखिए स्टूडेंट, सेक AC एंड सेक BD आर रेडियाई एंड लाइन L इज द टेंजेंट। देखिए सेक AC एंड सेक BD आर रेडियाई एंड लाइन L इज द टेंजेंट। ओके, सेक AC is the radius of the circle A, sec BD is the radius of circle B and L is their common tangent। okay, देखते हैं। therefore by tangent theorem, okay, tangent theorem क्या बोलते हैं, radius is perpendicular to tangent, radius is perpendicular to tangent। तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल्स ACD and BDC are 90 degree of each। ओके, एंगल ACD एंड एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में आपने ये 4 ये 4 ये 6 ये 6 बताया है और ये एंगल्स 2 एंगल्स हो गए 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। नाउ
इन ट्राइंगल ए एम डी सी, इन ट्राइंगल ए एम डी सी, ओके, तो एंगल सी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये इसको अपन फाइंड आउट करेंगे। ओके, यूजिंग थ्री लेटर्स नेम लिखते हैं, एंगल ए सी डी, एंगल सी डी एम एंड डी एम ए, ये जो थ्री एंगल्स है, ओके, एंड एंगल सी ए एम, ओके, ये सी ए एम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये सब की सम कितनी हो जाएंगी 360, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल सी ए एम, कौन सा एंगल है, सी ए एम इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो 90 प्लस 90 कितना होता है, 90 प्लस 90 प्लस 90 270 प्लस एंगल सी ए एम इज इक्वल टू 360, 270 को ट्रांसफर करते हैं। ओके, 360 माइनस 270, ओके, तो फाइनल आंसर आ गया आपका एंगल सी ए एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड, तो ये सब एंगल्स अगर 90 डिग्री है, ओके, सिंस एंगल सी डी एम एंड ये सी डी एम एंड ये तीनों भी एंगल्स, ये चारों भी एंगल्स अगर 90 डिग्री है, ओके, तो क्वाड्रिलेटरल ए एम डी सी इज अ रेक्टेंगल बाय डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन के हिसाब से, ओके, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डी एम इज द अपोजिट साइड्स ऑफ ए सी, तो ए सी और डी एम इक्वल रहेगा, तो ए सी 4 सेंटीमीटर है, तो डी एम भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। ओके, ए सी इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखती है बी एम प्लस एम डी इज इक्वल टू 6। ओके, देखिए बी एम एंड एम डी, ये पूरी जो रेडियस है, वी नो दैट इट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन अभी हमने डीएम निकाला है, तो डीएम कितना है 6, सॉरी डीएम कितना है 4, यहाँ पे डीएम कितना दिया हुआ है 4। ओके, ओके, पुट आउट द वैल्यू ऑफ डीएम। ओके, ओके, बी एम प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये एम डी जो है यानी कि डी एम जो है, इसकी वैल्यू हमने 4 पुट की है। ओके, 4 को ट्रांसफर करते हैं, बी एम, ओके, इज इक्वल टू 6 माइनस 4, बी एम इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर माइनस किया तो हमें मिल गया बी एम 2 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम इस ट्राइंगल में एंटर करेंगे, ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो ए सी है, सॉरी ए बी है, इसको फाइंड आउट करेंगे पहले। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ई बी, तो ए बी क्या है, ए प्लस ई बी, 4 प्लस 6 कितना होता है 10। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 6, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अपन अभी वर्क करने वाले हैं। ओके, इन ट्राइंगल ए एम बी, ओके, एम इज 90 डिग्री, हमने अभी प्रूव किया है, ये एक लाइन है, तो ये क्या है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लाइन है कंस्ट्रक्शन से, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखते, ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए बी, ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू रिमेनिंग साइड। ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने वाले साइड, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, ये 4 को इधर ट्रांसफर करते हैं, ओके, और ए एम की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ए एम इज इक्वल टू 100 माइनस 4,
AM इज इक्वल टू 96। ओके, तो ये जो 96 है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आ गया 4√6। ओके, स्क्वायर रूट निकालने की जो टेक्निक है वो हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में बताई है, उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो AM इज कितना आ गया आपका, AM ये जो AM है ये आ गया 4√6। ओके, वी नो दैट AM इज द अपोजिट साइड्स ऑफ CD, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो CD है वो भी 4√6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ओके, तो देखिए ये हमने निकाला है 4√6। ओके ओके, CD इज इक्वल टू AM अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, CD इज इक्वल टू AM अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, CD कितना है 4.4√6, तो CD आ जाएगा आपका 4√6। ओके, लेंथ ऑफ sec CD 4√6। okay, this is your final answer। okay okay students, that's the end of your 3.2 प्रॉब्लम सेट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें कवर करेंगे अपन कुछ थ्योरम्स एंड 3.3 प्रैक्टिस सेट्स। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।